ऑल राइट जी, तो वी आर डन विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. नेट इंजेक्शंस इसमें से क्या है पूछ रहा है. इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, इज इट अ नेट इंजेक्शन? This is a net injection. Imports are greater than exports. Is this a net injection? This is a net leakage. Taxes are greater than government expenditure. Is this a net injection? This is a net leakage. क्या आंसर है? बी. इससे आसान देखा कभी कुछ जिंदगी में? ये तो खैर नेशनल इनकम वाले. ये भी हम ये देखें जल्दी से, हरी अप. टैक्स रेवेन्यू पूछ रहा है आपसे. फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में उसकी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम में कब होती है? When injections are equal to leakages. Injections क्या होती हैं? I plus G plus X should be equal to S plus T plus M. डाल दें. 15 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 50. एक्सपोर्ट्स कितना है? दिया भाई नहीं है. अच्छा दिया हुआ 40. सेविंग्स कितनी है? 15. टैक्स कितना है? वही तो निकालना है. इंपोर्ट्स कितनी है? हाँ जी, आई थिंक यू कैलकुलेटेड इट. हाँ बस ठीक है, 45 ही. मेक सेंस? इससे आसान देखा कभी कुछ जिंदगी में? अगेन net injection, government expenditure is greater than net injection, yes or no? Savings greater than investment, is this a net injection? Exports are greater than imports, yes, this is a net injection. What could not exist in a closed mixed economy? Closed economy है, x minus m नहीं है. Mixed economy है, इसका मतलब गवर्नमेंट है. क्लोज्ड इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट सरप्लस कुछ भी नहीं होगा भाई. दिस इज द आंसर. आई बात समझ में? What represents a leakage from the circular flow of income in an economy? A trade surplus. Trade surplus कब होता है? Exports are greater than imports. Is this a leakage? No, this is an injection. Government budget surplus. This is a leakage. Taxes ज्यादा है, government expenditure कम है. This is a net leakage. Government expenditure जब ज्यादा होता है, नहीं कर रहा ना. कर सकती है क्या? क्या मतलब कर नहीं रही, तभी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है. ठीक है, चलें आ जाए, इधर आ जाए. दिस इज ये अब लेटेस्ट पेपर्स हैं. नहीं ये तो ये भी पुराने पेपर्स हैं ना. 15 है, ये भी 15 है, तो नए पेपर्स कहाँ गए हैं भाई हमारे? हमें क्या खोलना है? 23 25 इकोनॉमिक्स ग्रोथ. देखो जरा इसका. चलें जी, जल्दी से स्पीड मार दें. ये वो पिछले क्वेश्चन ये आ गया. According to the circular flow of income, what would be the immediate result of an increase in the value of countries' exports? If exports increase, immediate result क्या होगा? Imports भी बढ़ेंगी. ये कहाँ लिखा है कि exports बढ़ती हैं तो imports भी बढ़ती हैं? Savings बढ़ेंगी, taxes बढ़ेंगे. What a stupid question. अच्छा, this is a misprint. This is -3. Yes, खैर ये हम कर नहीं चुके थे. इधर आ जाए, ये पिछला पेपर. Circular flow of income is correct. Exports and import do not affect the equilibrium level of national income because they always cancel out each other. पाकिस्तान में हर साल they cancel out each other, exports and imports. 1947 से we are in a deficit. ये ले. The greater the level of saving, the greater the level of injections in the form of investment must be. Must जरूरी नहीं है. Your banks could be saving abroad as well. Your banks might choose not to invest. ठीक है, must be वाला काम खराब है. काट दूं?
When consumers use past savings to increase their spending, there will be a rise in national income because they see it in consumption. Consumption increases, aggregate expenditure increases. Aggregate expenditure increases, national income increases. This is the answer, sorry. This should be the answer. When a government increases withdrawals by increasing the rate of income tax, there must be an equivalent increase in injections. कहां लिखा है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स ज्यादा ले रही है तो इंजेक्ट भी करेगी पैसे? Does this make sense? इंक्रीज क्या करेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को? जी, a budget deficit increases. What is a budget deficit? This, and this further increases. What does that mean? ये और ज्यादा हो गया या ये और कम हो गया? इससे सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा? इससे सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा? आप बताएं, बढ़ेगा. Government expenditure is an injection. Remember, injections increase, it will increase the circular flow. Leakages increase, they reduce the circular flow. किसने कहा बुरा होता है? Who says budget deficit बुरा होता है? पढ़ेंगे. Budget deficit अच्छा होता है. दो किस्म के बजट डेफिसिट्स आगे पढ़ेंगे. एक होता है साइक्लिकल बजट डेफिसिट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. इवन ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज लाइक यूएसए और चाइना, ये सारे बजट डेफिसिट्स रन करते हैं. दे ऑलवेज बूस्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. ठीक है, पढ़ेंगे. Structural budget deficit that we have structural issues because no one pays taxes and we have a structural budget deficit. That is wrong. That is a bad thing. And we are consistently in a budget deficit. If it is a cyclical budget deficit, you're just trying to boost the economy by increasing your expenditure and by increasing injections and reducing leakages. That is a very good thing. ठीक है, तो इससे बजट डेफिसिट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा. ये हो सकता है आंसर हो. इंपोर्ट्स अगर बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स इज अ लीकेज, उससे सर्कुलर फ्लो कम होगा. इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, सेविंग्स ज्यादा हो जाएंगी. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. तो दिस इज अ लीकेज. दिस विल रिड्यूस द सर्कुलर फ्लो. एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, करेंसी अप्रिशिएट होगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगे. एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ने से एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. अगेन नेट लीकेज. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इंजेक्शंस बढ़ेंगी, सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा. लीकेजेस बढ़ेंगी, सर्कुलर फ्लो भी कम होगा और जीडीपी भी कम होगा. इज दिस क्लियर? इतनी लंबी कहानी डाल दी है तो हमें पहले ही पता है सब कुछ. Which statement is correct? At equilibrium, income and consumption are always the same. Income and consumption are always the same. No, ये income है और ये क्या है? ये C plus I plus G plus X minus M are always the same in equilibrium. He's saying सिर्फ ये दोनों equilibrium में बराबर होते हैं. Government always adjusts government expenditures so that economy is in equilibrium. Always does that? Not necessarily. If I is not equal to S, it is still possible for the national income to be in equilibrium. Yes, because we never said कि ये सारी आपस में बराबर होनी चाहिए. ये हमने कभी नहीं कहा कि ये इसके बराबर हो, ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बराबर हो, सेविंग्स. ओवरऑल हो सकता है इनमें से कोई एक चीज एक दूसरे के बराबर ना हो, लेकिन ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो देन वी विल बी इन, द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो दिस कैन बी ट्रू. इफ नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम, एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम. कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं. डू वी गेट इट? आगे आ जाए. ये क्या इतना लंबा का? ये पुराना वाला है, ये हम देख चुके थे या नहीं देख चुके थे? नहीं. अरे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? National income is equals to aggregate expenditure. National income is real output. जहां ये सब बराबर होंगे, ये माइनस है और ये C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. आप देख लें कहाँ ये हो रहा है. Does this make sense? जिस तरह ये हो गया 210, 260, 270 minus 20, 250. Is 250 equal to 100? No.
जहां पे ये बराबर हो गया, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम शुड बी इक्वल टू जीडीपी। ये हम कर चुके थे, डन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिया हुआ है, द इकोनॉमी हैज अ बजट सरप्लस, बजट सरप्लस है, टैक्सेस आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं, गलत है ये तो। इट हैज अ ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, ये भी गलत है। इट इज अ मिक्स्ड ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड है क्योंकि टैक्स है, ओपन है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो बहुत आसान है। इट सर्कुलर फ्लो इज इन इक्विलिब्रियम, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कितना है और ये कितना है, दिस इज 25 and this is 17 plus 5 is, वो 23 है, any case it's not in equilibrium, C is the answer। आसान है मुश्किल? oh this was a good one, ये करें। हम इस तरह बनाते हैं, समझ रहे हैं, इसने फ्लैट बनाया हुआ, बुक भी आपकी फ्लैट बनाती, गिव अप। हु इज टोटली कंफ्यूज, किसी किसके ऊपर से गुजर गया सब, बिल्कुल ऊपर से, कोई मसला नहीं। कहानी शुरू कहां से होती है, हमारी कहानी, हमारी कहानी कहां से शुरू होती है, households, they own factors of production, what do they own, they own factors of production and they give these factors of production to firms in the factor market। ये क्या जा रहा है, and they do it for free, ये फर्म से हमें फैक्टर मार्केट के थ्रू मिल क्या रहा है, रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, मेक सेंस, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां जा रहे हैं, नेशनल इनकम यहां जा रहा है। फर्म्स हमें क्या देती हैं, ये क्या जा रहा है, क्या देती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और ये यहां जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बदले हमसे क्या ले रही हैं, प्रोडक्ट मार्केट में पैसे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर तो ये जा रहा है, इज दिस एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं नहीं समझा सकता आपको, क्लॉक किस तरह चलती है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो ये क्लॉकवाइज है, समझ समझ आई बात की। गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो क्लॉकवाइज, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, ठीक है। अच्छा वो सही था, पहला वाला सही था या क्या था, एक सेकंड, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ना, दे डोंट फ्लो एंटी, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इनकम्स फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, इनकम्स क्लॉकवाइज जा रही है, देख रहे हैं, इनकम्स कहां जा रही है, ये इनकम है, किधर जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो वो जा क्लॉकवाइज रही है ना। रिसोर्सेज फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, रिसोर्सेज आर फ्लोइंग, ये भी ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अभी दोबारा देखते हैं, देयर इज समथिंग, सम मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग। क्यों, वाई, अच्छा हाँ, मैं अपनी, अच्छा मैं यूएन आई आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है, मैं इधर देख के करता हूँ, चले मैं आपको देख के कर रहा हूं। अच्छा बी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर मार्केट से किधर जा रहे हैं, फर्म से फैक्टर मार्केट को जा रहे हैं, ठीक है, तो किधर जा रहे हैं, ये, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज, यस दिस इज क्लॉकवाइज। रिसोर्सेज किधर से किधर जा रहे हैं, ये,
रिसोर्सेज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो क्लॉकवाइज। ये गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी हैं जो हम देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप प्रोडक्ट मार्केट देखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज ये जा रहे हैं कहां से? फर्म से प्रोडक्ट मार्केट से, और ये एंटी क्लॉकवाइज है गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स नॉट बी, इट्स डी। वो हम उल्टा देख रहे थे, ठीक है। माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ये देखा, ये कितना, इससे एक वैसे इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं। खैर, अगर सर्कुलर फ्लो ना पता हो तो ऑब्वियसली इतना भी नहीं है, फिजिक्स आनी चाहिए। नहीं नहीं, ये बहुत आसान सवाल था। आ जाए जी, अब मेन चीज पे आ जाए। टाइम अभी जाने का नहीं हुआ, तुम सबसे एंड पे जाओगे। जाने वाले को भी रोक सकते हैं? नहीं, ये भी है। चलें, आ जाए आ जाए आ जाए। फिर ये इकोनॉमिक्स ग्रोथ लिखा हुआ है, मेरा जो एडिटर है ना, फ्री में किया उसने। अच्छा जी, ये हो जाए। With the help of a circular flow of income diagram, when they say circular flow of income diagram, that means कि ये प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट, रेवेन्यू किधर जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज किधर जा रही है, नेशनल इनकम किधर जा रही है, बनाना पड़ता है। आई टोल्ड यू कि ये बनाना पड़ता है। एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड इन एन ओपन इकोनॉमी। Explain how equilibrium is determined in an... Girls, if you could please concentrate. And consider whether a budget deficit or a trade deficit is more likely to cause a lasting disequilibrium. आ जाए, शुरू करें। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो को डिफाइन करते हैं। क्या डेफिनेशन है? It shows how income, output and expenditure flow in an economy between households and firms. समझ आई? फिर कहानी शुरू से शुरू करें। किस तरह समझाएंगे सर्कुलर फ्लो को? देखें, आपने लिखना भी इस तरह। किस तरह लिखना है? प्राइवेट हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं? प्रोवाइड व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स, and in return they receive what? Income. ठीक है, national income. In return, firms provide them with goods and services, and they receive aggregate expenditure made by, ठीक है, aggregate total expenditure है ना अभी, क्योंकि open economy है ना, ठीक है। An economy is in equilibrium when aggregate expenditure is equal to national income. However, for this to be true, क्या होना पड़ेगा? इसी तरह आपने इन्हीं वर्डिंग्स में समझाना भी है। सेविंग्स विच इज लीकेज मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट आ गई फिर, ठीक है, क्या होगा? टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लीकेजेस क्या है? इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। यू विल मेक दिस थिंग एंड देन यू विल एक्सप्लेन इट इसी तरह। सो फॉर द इक्विलिब्रियम टू बी ट्रू इन एन ओपन इकोनॉमी, क्या होना चाहिए? I plus G plus X should be equal to S plus T plus M. एक और चीज के नंबर होंगे। किस चीज के? ओपन इकोनॉमी को डिफाइन करने के। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? which is involved in trade, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। Does this make sense? ये बात समझ आ गई सबको? ये समझाना है, ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है। अब आ जाए, कंसिडर वेदर अ बजट डेफिसिट और अ ट्रेड डेफिसिट is more likely to cause a lasting disequilibrium. Now we explain what a budget deficit is. What is a budget deficit? This is a budget deficit when government expenditure is greater than taxes. This is a net injection. This is a net injection into the system. Why? Because taxes, which is a leakage, is less than the injection, which is the government expenditure. What is a trade deficit? This is a net leakage from the circular flow of income. Why? Because import is a leakage and it is greater than an injection, which is an export. Now, after explaining these two, long lasting disequilibrium कौन cause करेगा?
इन दोनों में से लॉन्ग लास्टिंग डिसइक्विलिब्रियम कौन सा होगा? यू कैन गो टू एनी साइड यू वांट. आई बिलीव ट्रेड डेफिसिट इज मच डिफिकल्ट जॉब बिकॉज फैक्टर एंडाउमेंट पे डिपेंड करता है. अब ऑयल नहीं है तो मंगवाना ही है ना फिर. ठीक है, बारिश तो नहीं होनी ऑयल की, है ही नहीं एक कंट्री के पास, तो उसने मंगवाना है. ठीक है, तो ये निकल तो नहीं आएगा कल परसों. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर नहीं है और वो फैक्टर एंडाउमेंट्स की वजह से डेफिसिट में है, तो वो डेफिसिट लॉन्ग लास्टिंग होगा, इतनी जल्दी वो कवर नहीं हो सकता. जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस आर पॉलिसी टूल्स. ये तो गवर्नमेंट के अपने हाथ में कि गवर्नमेंट कब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर ले और टैक्सेस को इंक्रीज कर ले. तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हमारे ख्याल से ये होना चाहिए. डज दिस मेक सेंस? ठीक है, ये क्वेश्चन हाई स्कोरिंग है, ये क्वेश्चन आसान है. लोगों को आई डोंट नो क्यों ये तंग करता है. हम इसको पूरा लिखेंगे. An understanding of the circular flow of income shown through an accurate diagram showing income flows between firms and households, correct inclusion of exports and imports, correct inclusion of government expenditure, and explanation of injections into the circular flow of income, explanation of leakages into the circular flow of income, determination of equilibrium in the consideration how a budget deficit or a trade deficit leads to disequilibrium in the circular flow of income, consideration which is likely to be long lasting. इसीलिए इसको मार्क्स स्कीम कहते हैं. इधर आ जाए. इवैल्यूएशन सारी इस तरह होती है, साइलेंट होती है, कुछ नहीं बता रहे. एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी. हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? क्लोज्ड इकोनॉमी मींस x माइनस m. इक्विलिब्रियम कैसा होगा इस इकोनॉमी का? s प्लस t. i प्लस g इज इक्वल्स टू. ये इक्विलिब्रियम आपने दिखाना है. एंड कंसिडर क्लोज्ड इकोनॉमी भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और सर्कुलर फ्लो को पूरा समझाना पड़ेगा. दिस टाइम देयर इज नो नीड टू मेक इट, लेकिन वर्डिंग्स में समझाना पड़ेगा उसी तरह कि फर्म्स यहां से शुरू होंगी, ये करेंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किधर जाएंगे, नेशनल इनकम किधर जा रही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किधर से किधर जा रहा है. द एक्सटेंट टू व्हिच सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चेंजेस एज एन इकोनॉमी बिकम्स एन ओपन इकोनॉमी. फिर आपने बताना है कि इनमें दो चीजें ऐड हो रही हैं. क्या ऐड हो रहा है? इस साइड पे जब ओपन इकोनॉमी हो रही है एक्सपोर्ट ऐड हो रहा है, इस साइड पे क्या ऐड हो रहा है? इंपोर्ट्स ऐड हो रहे हैं. ये इंजेक्शन है, ये लीकेज है. बात समझ आई? किस हद तक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा इन दोनों के ऐड होने से? इट डिपेंड्स. इट डिपेंड्स के ये सीन है या ये सीन है. यू क्रिएट अ सिनेरियो के क्योंकि अभी अभी ओपन इकोनॉमी बनी है, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, and this is one country which is now open to the entire world, so there is a greater chance that they will be importing lots of stuff as compared to the amount they could export. या आप काउंटर आर्ग्यूमेंट बना दें कि अगर इसके पास बहुत ज्यादा ऑयल रिच है, ईरान अगर होगा, ओपन इकोनॉमी बन जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है अमेरिका के साथ, तो ईरान के पास तो ऑयल है, वो पूरी दुनिया को बेचेगा और दुनिया से क्या ही लेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खरीदेगा, गाड़ियां मंगवाएगा, आईफोन खरीदेगा. डज दिस मेक सेंस? आ जाए. Clear knowledge and understanding that the circular flow of income in a closed economy involves households, firms, and government, and has injections of I and G and leakages of S and T, so that in equilibrium कैसा होता है closed economy का? I plus G और S plus. An analysis of circular flow of income changes as an economy becomes an with the introduction of participation in the international economy through the injection of X and withdrawal of M. और अब equilibrium क्या बन जाएगा? किस चीज पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ नेट ट्रेड की उसकी क्या पोजीशन होगी, कि ओवरऑल उसके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से या इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से. डू वी अंडरस्टैंड दिस? कौन सा अटेम्प्ट करें? जो पहले किया था निकालें, लिखें. अभी अभी, कल परसों नहीं, अभी. हाँ, एक काम करेंगे, आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, मैं भी लिखवाऊंगा.
आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और मैं भी इसी को लिखवाऊंगा। टेक अ पिक्चर, अटेम्प्ट इट, एंड आई विल मेक यू राइट दिस, एंड देन वील कंपेयर इट। किधर